students, myself Yugandhar sir. Welcome to in this new video. In the previous video, we have to see chapter number 11. On that chapter number 11, we have to see numbers. In that numbers, we see the numbers from 51 to 70, next 71 to 100. We have to see. Okay. In that chapter, we have to see the money. You know about the money. What is meant by money? Money means rupees. So there are many rupees. 1 rupee coin, 2 rupee coins, 5 rupees coins, 10 rupees coins. Okay, so that is the coins are. Next we see the notes. We see the notes. So first in the past we see the 2 rupee note, 1 rupee note. But otherwise we go on present. We see the 5 rupees note, 2 rupees note. We see the less than. We see the less 2 rupees note. But we have to see the 5 rupees, 10 rupees, 20 rupees. 100 rupees, 50 rupees, next 500 rupees, 2000 rupees. There are many notes we have to see. Okay, so today we are going to see the chapter number 12, standard first, subject maths, money. Okay, so in that money I will draw some coins. Okay, we have to see. Okay, so first one, this is the 1 rupee. Okay, next, so coin these lines. In that circle there is 2 rupees. Next, 5 rupees coin. Next, 10 rupee coin. Okay, we have to see 1 rupee coin, 2 rupees, 5 rupees. That is the coin you see in your home. In your mother you have to give one work to go to the shop and take these things in that shop. So for example, go to the shop and take one biscuit puda. Okay, so 5 rupees biscuit puda. So you can go to shop and you can collect the 5 rupees biscuit. Okay, after that your mom tell go and take 1 kg oil, 1 kg coconut oil. You can take the money and you can go to the shop and you can ask that the shopkeeper give me the 1 kg oil, 1 kg coconut oil. The shopkeeper you have to tell how many rupees you can give me, the how many rupees you can tell 95 rupees, 98 rupees. So there are many how many rupees are there you can give the shopkeeper, and shopkeeper give the give the 2 rupees. Okay, so that like rupees we have to see. In that first we see the coins. First we see the coins. This is the 1 rupee coin, 2 rupees coin, 5 rupees coin, 10 rupees coin. Next, in that next that first we see the 1 rupee coin. In that 1 rupee coin we see the, in that first we see the 50 paise. 50 paise. Next 4 12. So that's like we have to see. This is the 50 paise. Okay, we call it a atani. We call it a atani. Okay, so next 1 rupee coin, 2 rupee coin, 5 rupee coin and 10 rupees coin. So you have to see like that coins you have to see. Okay, in your page. So all of the students open your textbook, page number 124. On that page number 124 we see the coins. Yes, that is the first rupee coin. Okay, first rupees coin, next 2 rupees coin, next 5 rupees coin and next 10 rupees coin. So there are 4 coins. For example, first one is here. In the first square bracket, in the first square box there we see 1 rupee coin. In that second square we see the 2 rupees coin. In the third one we see the 5 rupees coin. Next 10. Fourth one there is a 10 rupees coin. So what happened here? So here we see that there is a shopkeeper. He selling the mango. There are fruits. He's selling the fruits, mangoes, apples, banana. There are many fruits are there. He's selling it. So which one is collecting a banana? So how many 1 dozen? Give me the 1 dozen banana. So how many rupees 1 dozen bananas? 25, 30 rupees are there. So you have to collect. So that's like we have to see the note currently in use in currency. Currency का मतलब है आज हम यूज करते हैं notes. जैसे कि 5 rupees, 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees and 100 rupees. We use that notes. For example, one note is in my pocket. So I will show you. Okay, so this is the 500 rupees note. This is the 500 rupees note. And who is it? Who is it?
दिस इज द महात्मा गांधी. He is the freedom fighter. He is the one freedom fighter, Mahatma Gandhi. And this is the Red Fort. This is the Red Fort. In a Red Fort we see that 15 August. In that 15 August we see our flag. तो वहाँ पे हमारा झंडा लहराया जाता है 15 अगस्त का. नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं नरेंद्र मोदी जी, वो आते हैं और वो फ्लैग क्या कहते हैं वहाँ पे लहराते. तो ये जो मैंने अभी आपको देखा है 500 रुपीज नोट है. हाँ, ये क्या भारतीय बच्चों का बैंक. ये जो नोट्स होते हैं वो चलते हैं क्या? नहीं चलते. हाँ, तो इस तरह से नोट्स होते हैं 5 रुपीज की, 10 रुपीज की, 20 रुपीज की, 50 रुपीज की एंड 100 रुपीज. I will show you, I will draw only that notes size and how it is that. Okay, so I will draw that coins. हाँ, ये 1 रुपीज है, ये 2 रुपीज है, 5 रुपीज है और 10 रुपीज. इस तरह से क्या होते हैं? कॉइन्स होते हैं. और क्या है? आता नहीं. इसका मतलब है 50 पैसे. ओके, अभी मैं आपके सामने नोट्स ड्रॉ करने वाला हूँ. नोट्स, तो नोट्स कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल 5 रुपीज नोट्स. हाँ, ये 5 रुपीज की नोट होते हैं. यहाँ पे गांधी जी होते हैं और यहाँ पे कॉर्नर में क्या होता है? 3 स्तंभ होते हैं. हाँ, शेर के 3 स्तंभ होते हैं और यहाँ पे लिखा होता है 5 रुपीज 5 रुपीज. हाँ, नेक्स्ट 10 रुपीज. 10 रुपीज क्या होती है? उससे भी थोड़ी सी बड़ी होती है. ये क्या होती है? 10 रुपीज. हाँ, नेक्स्ट 20 रुपीज. 20 रुपीज क्या होती है? उससे थोड़ी बड़ी होती है. हाँ, दिस इज द 20 रुपीज. नेक्स्ट 50 रुपीज. 50 रुपीज क्या होती है? साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है. वैसे भी यहाँ पे आपको साइज यहाँ पे दिख रहा है. यहाँ होती है 50 रुपीज. नेक्स्ट 100 रुपीज. तो ये क्या है? 5 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट, 20 रुपीज, 50 रुपीज एंड 100 रुपीज. In your home you can see there are currency notes. In your father, mother you can give it. So students, see that notes. Okay, so see that 5 rupees, 10 rupees, 50 rupees, 20 rupees and 100 rupees notes are there. So what we have to do here? So open your page number 126. Sorry, in that page number 126. So what we have to do there? So see, so we have to part that 1 rupee. We have to part that 1 rupee. Now how many coins to part that 1 rupee? We have to divide 1 rupee. Make the given amount using different combination of coins. तो हमें 1 रुपये, जो 1 रुपये क्या करना है? हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन में क्या करना है? वहाँ पे हमें क्या करना है? बताना है. तो जैसे कि 1 रुपये, वहाँ पे क्या लिखा है? 1 रुपये. हाँ, तो 1 रुपये को डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल 50 पैसे और 50 पैसे मिलकर क्या होते हैं? 1 रुपये. ये क्या है? 50 पैसे और 50 पैसे मिलकर क्या होता है? 1 रुपये. नेक्स्ट 2 रुपये. 2 रुपीज कैसे होते हैं? 2 रुपीज कौन बताएंगे मुझे? 2 रुपीज कैसे होते हैं? 2 रुपीज कैसे होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ 1 रुपीज. कॉम्बिनेशन ऑफ 1 रुपीज. 1 rupees. Combination of 1 rupees. Okay, next combination of 50 पैसे. 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे? 4 कॉइन्स मिलकर क्या होते हैं? 2 रुपए. एंड नेक्स्ट और कैसे होता है कॉम्बिनेशन? 50 पैसे दो और 1 रुपए. 50 पैसे 2 और 1 रुपये का 1 कॉइन. हाँ, तो ऐसे मिलकर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है. क्या होता है बच्चों? एक कॉम्बिनेशन. 2 रुपीज का कॉम्बिनेशन कैसे होता है? 1 रुपये मिलके 2 रुपीज होता है. 50 के 4 कॉइन्स लेके हम क्या कर सकते हैं? 2 रुपीज करते हैं. और क्या कर सकते हैं? 50 पैसे लेकर और 1 रुपये का कॉइन लेकर हम क्या करते हैं? 2 रुपीज ऐसे लिख सकते हैं. नेक्स्ट 2 रुपीज, जैसे कि मैंने आगे 2 रुपीज में और ये डिवाइड हो सकता है 50 पैसे में. नेक्स्ट 50 पैसे हैं 1 रुपये. नेक्स्ट 3 रुपीज. 3 रुपीज को हम कैसे डिवाइड करेंगे?
3 रुपीज को हम कैसे डिवाइड करेंगे? 3 रुपीज को 1 रुपीज के 3 कॉइंस, 1 रुपीज के 3 कॉइंस, हाँ 1 2 एंड 3। तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते। और कैसे कर सकते? 3 रुपीज के कॉइंस को 2 रुपीज का 1 कॉइन, 2 रुपीज का 1 कॉइन लेते हैं, और 1 रुपीज का 1 कॉइन। तो ऐसे मिलकर क्या होते हैं? 3 रुपीज हो सकते हैं। और कैसे 3 रुपीज हो सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं? 50 पैसे, 50 पैसे के हम सब कॉइन्स निकाल सकते हैं। 50 पैसे के 6 कॉइन्स, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं? 3 रुपीज लिख सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया ये कॉम्बिनेशन कैसे है? ये 1 रुपये का कॉम्बिनेशन कैसे है? 50 पैसे का। नेक्स्ट 2 रुपीज को कॉम्बिनेशन कैसे है? 1 रुपीज करके 2 रुपीज हो सकता है। नेक्स्ट 50 के 4 कॉइन्स लेंगे तो क्या हो सकता है? 2 रुपीज। नेक्स्ट 50 पैसे के 2 कॉइन्स और 1 रुपये का 1 कॉइन, ऐसे में कितने रुपए हो सकते हैं? 2 रुपीज। नेक्स्ट 3 रुपीज कैसे हो सकते हैं? 1 रुपीज के 3 कॉइन्स, 1 रुपीज के 3 कॉइन्स। नेक्स्ट 3 रुपीज में 2 रुपीज का 1 कॉइन और 1 रुपीज का 1 कॉइन। तो there are 2 coins to combine, that time you get 3 rupees. Next 50 पैसे, there are 6 coins to collect, that time you get the 3 rupees. तो बच्चों आपको समझ में आया कैसे कॉम्बिनेशन करना है आपको? तो इस तरह से कॉम्बिनेशन आपको क्या करना है? आपके टेक्स्ट बुक में क्या करना है? लिखना है। नेक्स्ट वी सी द 4 rupees combination and 5 rupees combination. Okay, all of you see that? Okay, so wrote it down in your notebook. First what you have to do? So first you have to pause the video and you have to rotate down. Okay, तो बच्चों आपको क्या करना है? वीडियो पॉज करना है। वीडियो पॉज करके आपको क्या करना है? एक लिख के लेना है। ओके, आपको समझ में आया क्या करना है? वीडियो पॉज करके आपको क्या करना है? लिख के लेना है। Okay, next we see the 4 rupees. Next we see 4 rupees. 4 rupees के हमें कितने कॉइन्स करने हैं? 1 4 rupees, 2 and 3. Okay. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 4 रुपीज के क्या करना है? कॉइन्स कॉम्बिनेशन करना है। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे? 2 रुपीज के कॉइन्स लेंगे, 2 रुपीज के कॉइन्स लेंगे। 2 रुपीज एंड 2 रुपीज। तो यहाँ पे क्या होता है? 4 रुपीज। तो ये 2 रुपीज का क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। ओके, ये क्या हो गया हमारा? फर्स्ट वन। सेकेंड वन में हम क्या करेंगे? 1 रुपीज के 4 कॉइन्स लेंगे। 1 रुपीज के कितने कॉइन्स लेंगे? 4 कॉइन्स लेंगे। तो 1 रुपी कॉइन्स, 1 रुपीज कॉइन्स। नेक्स्ट 2, नेक्स्ट सॉरी ओनली 1। हाँ, 1 रुपीज के हमने कितने कॉइन्स लिए यहाँ पे? We collect 1 2 3 and 4 coins. 1 rupees 4 coins we collect, that time you get 4 rupees in that line. Next 4 rupees coin, 2 rupees 1 coin, 2 rupees 1 coin and 1 rupees 2 coins. तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 4 रुपये को हम कैसे करेंगे? 2 रुपीज में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट 4 रुपीज को और कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 1 रुपीज के 4 कॉइन्स लेके हम क्या कर सकते हैं? उसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट और 4 रुपीज को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 2 रुपीज का 1 कॉइन और 1 रुपीज के 2 कॉइन्स, ऐसे भी हम क्या कर
अदरवाइज हम 50 पैसे के कितने कॉइन्स कर सकते हैं, 8 कॉइन कर सकते हैं, तो हमें कौन सा रुपीज मिलेगा, 4 रुपीज मिलेगा। तो ऐसे करके हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 रुपीज का कॉम्बिनेशन वी हैव टू मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन। तो इस तरह से हमें क्या करना है, वो भी एग्जांपल सॉल्व करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और वीडियो पॉज करके आपको क्या करना है, वो कंप्लीट करना है। तो ये आपको समझ में आया ये हमने कैसे किया। ओके, सो नेक्स्ट वी सी द 5 रुपीज, नेक्स्ट वी सी द 5 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 रुपीज कॉइन को, हमें विच कॉइन, 5 रुपीज कॉइन। फाइव रुपीज एंड 5 रुपीज। ओके, तो फर्स्ट वन में 5 रुपीज के हम कितने कॉइन्स निकालेंगे, 1 रुपीज के 5 कॉइन्स निकालेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। हाँ, तो ये कितने कॉइन्स निकाले हमने, 1 2 3 4 5 कॉइन्स। So 1 rupees के how many coins are there? There were 5 coins are there. So we collect that 5 coins, we get 5 rupees. तो बच्चा हमें एक एक रुपए के कितने रुपए ले, 5 रुपए ले। तो हमारा कौन सा कितने रुपए हो गए, 5 का $1 हो गया। तो ऐसे करके हमें और 5 और कौन से डॉलर डिवाइड करते हैं, इतने डॉलर होंगे। तो 2 रुपीस के 2 कॉइन्स, 2 रुपीस 2 कॉइन्स, 2 rupees 2 coins and 1 rupee। हाँ, तो ऐसे करके हमें क्या होगा, 5 रुपीज का कॉइन होगा, 2 रुपीज 2 रुपीज एंड 1 रुपीज। तो ऐसे करके हमें क्या होंगे, 5 रुपीज यहाँ पे मिलेंगे। और कैसे यहाँ पे मिल सकते हैं हमें, 2 रुपीज ओनली 2 रुपीज और 1 रुपीज के 3 कॉइन्स, 1 2 एंड 3। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 रुपीज का 1 कॉइन और 1 रुपीज के 3 कॉइन्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डिवाइड मतलब कॉम्बिनेशन। तो कैसे कॉम्बिनेशन हो सकता है, 5 रुपीज का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, 1 रुपीज के कॉइन लेकर 5 रुपीज का कॉम्बिनेशन होता है। और 5 रुपीज का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, 2 रुपीज और 1 रुपए लेकर और इसका क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट 5 रुपीज का और कैसे कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो जैसे 2 रुपीज के 1 कॉइन और 1 रुपीज के 3 कॉइन्स लेकर यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो बच्चों आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और वीडियो पॉज करके आपको क्या करना है, ये कंप्लीट करना है। इन योर टेक्स्ट बुक यू हैव टू कंप्लीट इट। ओके, तो बच्चों आपको समझ में आया हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा मनी। तो मनी में हमने पहले क्या क्या सीखा, मनी में तो मैंने पहले हमने सीखा कि 1 रुपीज, next 2 rupees, next 5 rupees and next 10 rupees. So we see the first coins, we see the first coins, 1 rupee का coin, 2 rupees का coin, 5 rupees का coin and 10 rupees coin. We see the next notes, we see the next notes currently used in our currency. तो उसमें हमने कौन से notes देखे हैं, 5, 10, 20, 50, 100, 500 and 200. In that currency we use that notes in our currency. So your father and mother, otherwise your big brother, you can give the take one work or you can go to the shop and collect there are things. So that time he or she gave us, you have to notes. That time 10 rupees note, 50 rupees note, 100 rupees note. Yeah, she or he, you can give it and you can take and you can go to the shop and you can take these things and you can come to the home and you can give the purchase. How many rupees you can purchase these things, you can tell your brother, otherwise your sister and your parents. So that's like you have to complete it. Okay, तो बच्चों आपको समझ में आया आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा मनी। मनी में हमने कौन से रुपये देखे, 1 रुपये देखा, 2 रुपये देखा, 5 रुपये देखे और 10 रुपये देखे। नेक्स्ट हमने उसमें नोट्स देखे। उसके बाद हमने क्या देखा, पेज नंबर 126, पेज नंबर 126 में हमने देखा 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये के
make the given amount using different combination of coins. नेक्स्ट हमने देखा पेज नंबर 127 पे 4 रुपया 4 rupees 5 rupees. So make the given amount using a different combination of coins. So all of you understood what we learned today. So today we are going to learn about the money. So combination of coins. Okay, in that next point we see the next video. Okay, so today we will stop here. In that lecture there are some problems, queries, otherwise difficulties are there. You can call me, otherwise you can give me the message. तो बच्चों आपको समझ में है यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आपको क्या करना है लिखेंगे. Okay, so pause the video and rotate down in your notebook also and textbook also. In your homework you have to complete money chapter. Okay, in that chapter you have to complete page number 126 to 127. हाँ, तो बच्चों आपको ये कंप्लीट करना है. दिस इज योर होमवर्क, पेज नंबर 126 एंड पेज नंबर 127. तो आपको ये कंप्लीट करना है. Okay बच्चों, so today we will stop here. In the next lecture we see the next point. Okay, so thank you very much.